Hello students, in previous video we have completed lesson number 8 and now today we have to start with the exercise of this lesson. But before starting the exercise, I want to revise the whole lesson once again so that it will be easy for you to solve the exercise and to do the question answers. So in this chapter what we have learned about the water scarcity. What are the reasons behind the scarcity of water? Scarcity means shortage of water, and how we can conserve the water. So we have learned that Earth is called a blue planet. Why Earth is called a blue planet? Because 3/4 of its surface is covered with water. So this is very important, that Earth is called a blue planet because 3/4, I have already told you how much is 3/4. 3/4 of its surface is covered with water. तो water बहुत ज़्यादा present है Earth पे. That's why वो blue planet कहलाता है. And out of this water, most of the water exists in oceans, and which is salty, and we cannot use that water for our daily needs. And only a small part of water is fresh water. थोड़ा सा water है बहुत कम amount में as compared to this salt water, that is a fresh water. So only we use that fresh water for our daily needs. But this fresh water is decreasing due to various factors, and those are population, deforestation, and setting up of factories. So these are the three factors जो responsible हैं shortage of water के लिए. So how they are responsible? We will revise it. Population, you know that the population is increasing day by day. So with increase in population, the demand of water has also increased. Population बढ़ रही है तो जो water की demand है वो भी बढ़ती जा रही है. And ज़्यादा people हैं तो उनको ज़्यादा water चाहिए. But the sources of water are not increasing. वो तो उतने ही हैं. They are fixed or you can say limited. तो वो तो increase नहीं हो रहे हैं. But जो requirement है और वो बढ़ती जा रही है. So the amount of water available for each person is decreasing. So that's why the increase हो रही है population, उसकी वजह से भी shortage water की होती जा रही है. Secondly, deforestation. So deforestation means cutting down of trees, and rain and snow are the two main natural sources of water. Ultimately जो हमारे अर्थ पे water आता है वो कहाँ से आता है? Rain and snow के through आता है. So these are the two main natural sources of water. And जब हम trees को cut करते हैं then what will happen? जो rainfall है वो भी कम हो रही है, decrease हो रही है, because जो trees होते हैं वो rainfall लाने में बहुत हेल्प करते हैं. जहाँ पर ज़्यादा ट्रीज होते हैं वहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होती है, और जो डिफॉरेस्टेशन की वजह से अर्थ पे जो है वो ट्रीज कम होते जा रहे हैं और बहुत कम हो चुके हैं. सो ड्यू टू दैट व्हाट हैपन्स कि जो आपके ट्रीज डिक्रीज हो रहे हैं, सो द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ ट्रीज रिजल्ट्स इन अ डिक्रीज इन रेनफॉल. सो यू कैन अंडरलाइन इट. Decrease in number of trees results in a decrease in rainfall. तो जब number of trees कम हो रहे हैं तो rainfall भी हमारी कम हो रही है. So next is your setting up of factories. कि जो factories set up हो रही है, factories तो लगेगी ही because जो हमारी demands हैं वो बढ़ती जा रही है. जो population increase हो रही है तो उनकी demands भी ज़्यादा हो रही है. So, to meet the growing demands of foodstuffs, clothing and other material, जो ये फैक्ट्रीज है ये सेटअप करनी पड़ रही है उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए.
अगर वो डिमांड्स अदरवाइज वो फुलफिल नहीं हो सकती. सो दे बट दीज फैक्ट्रीज नीड large quantity of water. You can see here in the picture also कितना ज़्यादा water ये लगता है. But ये water आता कहाँ से है? All the factories are not near the rivers और बाकी seas जहाँ पर water bodies है उनके आसपास तो नहीं है ये सारी factories. So where does this water come? तो ये water जो है ये कहाँ से लेते हैं? अंडरग्राउंड वाटर को यूज़ करते हैं. एंड अंडरग्राउंड वाटर को यूज़ करने से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वाटर वो निकाल लेते हैं. बट ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल शॉर्टेज क्यों हो रही है? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ड्यू टू द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ ट्रीज. सो शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल, जो ये हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है वापस अगेन फिल नहीं हो पा रहा है जितना कि हम उसको निकाल रहे हैं. एंड जिसकी वजह से शार्प डिक्रीज इन द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर. इसकी वजह से क्या हो गया? वाटर लेवल जो है अंडरग्राउंड वाटर का वो बहुत नीचे जा रहा है. सो आने वाले टाइम में हमको ग्राउंड वाटर भी अवेलेबल नहीं होगा अगर हम इसी स्पीड से ग्राउंड वाटर को निकालते जाएंगे. नेक्स्ट इज नीड फॉर कंजर्विंग वाटर. सो यू नो दैट व्हाट इज द नीड, क्योंकि अगर हम वाटर को अभी कंजर्व नहीं करेंगे सो इट will not left for the future. तो हमारे फ्यूचर में हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है. हमको वाटर की शॉर्टेज जितनी है उससे बहुत ज़्यादा हो जाएगी और हमको जितना रिक्वायर्ड है वाटर वो नहीं मिल पाएगा. जब हमें नहीं मिलेगा तो बाकी जो एनिमल्स हैं और जो क्रॉप्स हैं उनको कैसे मिलेगा? वो सारे भी उसकी वजह से, शॉर्टेज ऑफ वाटर की वजह से वो भी प्रॉब्लम में आ सकते हैं. So that's why we need to save the water. Now what is water conservation? Water conservation means proper and careful utilization of water. कि जब हम वाटर को ध्यान से और प्रॉपरली यूज करें बिना उसको वेस्ट किए, और जो हमारे जो डिफरेंट सोर्सेज हैं वाटर के उनको भी मेंटेन रखें, उनको खराब ना करें, सो दैट वो हमको प्रॉपर वाटर उनसे मिलता रहे. सो दैट इज कॉल्ड वाटर कंजर्वेशन. सो इट इज ऑलरेडी अंडरलाइंड that proper and careful utilization of water, avoiding its wastage and maintaining the amount of water in its different sources is called water conservation. And then we have discussed about the ways of conserving water, how we can conserve water, कैसे हम conserve कर सकते हैं अपने day to day life में. So we have discussed all these points, that turn off the tap after using it, do not keep tap running while brushing. Brush करते हुए tap run नहीं करना है. हैंड वॉश करते हुए भी जितने रिक्वायरमेंट है उतना ही टैप खोलेंगे हम. सेकेंडली यूज मग एंड बकेट टू टेक बाथ इंस्टेड ऑफ शावर. शावर की जगह मग एंड बकेट यूज करेंगे बात करते हुए. एंड water the plant with a mug and bucket as shown in the picture, and take only that much of water in a tumbler that you can drink. Do not throw the leftover water in a sink. Pour it over plants. Do not throw away water used for washing vegetables, rice and pulses. Use it for watering plants. And last one, गेटिंग द लीकिंग पाइप्स एंड टैप्स रिपेयर्ड इमीजिएटली. जो भी लीकिंग पाइप्स एंड टैप्स आपको घर में है उन सबको इमीजिएटली रिपेयर करवाएं सो दैट वाटर वेस्ट ना हो. सो ये जो पॉइंट्स आपको गिवन है 7 पॉइंट्स, इनको अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारा वाटर जो है वो सेव कर सकते हैं. एंड देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हाउ वी कैन कंजर्व वाटर ऑन लार्ज स्केल. ये तो था कि हम लोग डे टू डे लाइफ में कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं वाटर को. एंड देन वी हैव डिस्कस्ड कि हम ज़्यादा स्केल पे, बड़े स्केल पे, ज़्यादा क्वांटिटी में हम वाटर को कैसे सेव कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, ओवर इरिगेशन ऑफ फील्ड शुड बी चेक्ड. इरिगेशन जितनी रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा हमें वाटर नहीं डालना चाहिए. सेकेंडली, वाटर स्प्रिंकलर शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ
अदर सोर्सेज जो हमें वाटर स्प्रिंकलर यूज करेंगे तो उससे भी वेस्टेज जो है वाटर की वो कम होती है. सेकेंड, वी हैव डिस्कस्ड दैट वी कैन स्टोर लॉट्स ऑफ वाटर इन डैम्स, और जो डैम्स हैं वो फ्लड को भी आने से रोकता है. सो डैम्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड टू चेक फ्लड्स एंड दिस ऑल्सो हेल्प टू प्रिजर्व लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर. बहुत सारा वाटर को ये प्रिजर्व करने में, स्टोर करने में हेल्प करता है और फ्लड्स को भी आने से रोकता है. सो ज़्यादा क्वांटिटी में, बिकॉज डैम बनाने से क्या होगा, ज़्यादा जो क्वांटिटी में आपका जो है वाटर प्रिजर्व होता है. अदरवाइज हम इतना वाटर जो है नॉर्मल डे टू डे लाइफ में प्रिजर्व नहीं कर सकते. एंड नेक्स्ट इज योर रेन वाटर हार्वेस्टिंग. रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है कि जो रेन वाटर है उसको प्रॉपरली हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं. दैट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग. हम लार्ज अंडरग्राउंड टैंक्स जो हैं वो बना सकते हैं सो दैट जो भी वाटर है हमारा रेन का वो सारा उसमें कलेक्ट हो जाए और उसको हम फिर अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं उस वाटर को. एंड इट ऑल्सो हेल्प टू इंक्रीज द ग्राउंड वाटर लेवल. ग्राउंड वाटर लेवल भी इंक्रीज हो जाता है उससे. कैसे? जो वाटर हमने जो लार्ज अंडरग्राउंड टैंक्स बनाते हैं उससे धीरे धीरे जो वाटर है वो नीचे सीप होता रहता है और जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर लेवल भी इंक्रीज हो जाता है. एंड देन वी यूज दैट वाटर फॉर अवर डे टू डे लाइफ. उसको लिफ्ट कर सकते हैं हम, यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, एंड फिर उसको अदर पर्पजेज के लिए यूज कर सकते हैं. एंड हम जो है जो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये सिर्फ एक आदमी का काम नहीं है. ये जो वाटर कंजर्व करना है हमें, ये अगर हर घर में, हर स्कूल्स में, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, हर जगह पर अगर इस तरह से प्रॉपरली रेन वाटर को प्रिजर्व करने का, कंजर्व करने का, हार्वेस्ट करने का जो है प्रॉपर तरीके से हो मैनेजमेंट, तो हम बहुत सारा वाटर, रेन वाटर को हम कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं फॉर आवर डेली नीड्स. अदरवाइज वो सारा रिवर्स के थ्रू ओशंस में जाता है और वेस्ट हो जाता है. सो वी मस्ट टेक केयर टू कंजर्व वाटर एंड प्रिजर्व इट फॉर फ्यूचर. एंड इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ एनी वन पर्सन. ये हम सबको रियलाइज करना है कि ये हर एक पर्सन की ड्यूटी है. अगर सब अपनी ड्यूटी समझ के वाटर को कंजर्व करें, वेस्ट ना करें, प्रॉपरली यूटिलाइज करें, तो हम बहुत सारा वाटर जो है वो कंजर्व कर सकते हैं. और जिससे क्या होगा कि हमारा फ्यूचर के लिए हम वाटर को बचा पाएंगे. So this is all about this lesson. So in next video we will discuss the exercise and question answers of this lesson. Thank you.